Hey study abroad aspirants, fall 2024 intake अपने एक पीक पर चल रहा है and round 1 deadlines are already closed for top schools for fall 24 intake. I hope आप students में से maximum students ने अपनी applications already submit कर दी होंगी for fall 24 intake and the rest would be in the middle of submitting the applications. So I hope आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे tips and tricks मिलेंगे जो आपको definitely help करेंगे in speeding up your application process. तो friends, आज मैं आपको walk through कराऊंगा step by step through a real application. We will be applying for full-time MBA for September 24 intake at Boston University. I will take you through each and every step of the application. What are the details required? What are the documents required? Each and every step in detail. So pause the video here, take out a diary and a pen and make sure you are taking important notes for each step we are covering. So let's jump right into the application. So before jumping right into this application, I wanted to cover a quick case study. As you can see, one of our students, Hitanshu, he has gotten through Boston University MBA with $45,000 worth of scholarship. So this is a case study जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे ऐड करूंगा, आप जाके देख सकते हैं. इस वीडियो के बाद डिटेल में इस केस स्टडी को कवर कर सकते हैं. Hitanshu had a background in civil engineering. He did BTech with 8.3 CGPA. He had 6 years of work experience, but he wanted to apply with the GMAT waiver. We had certain profile challenges. As I mentioned already, we wanted to apply with a waiver. We had a timeline crunch and we just wanted to apply to top 30 ranked universities. We created certain strategy points. We worked on certain pointers with Hitanshu and the result that we got was that we got through Boston University with $45,000 worth of scholarship. By clicking on this button, you can also view the offer letter and the scholarship letter which is here. Definitely some of the personal details due to privacy reasons have been marked out and this is the scholarship which is there in the offer letter. So let's jump right into this application and let's see कि हम कैसे step by step एक एप्लीकेशन को कंप्लीट करते हैं and what all are the important pointers that you need to be aware of. So let's jump into it. So सबसे पहले मैंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी के MBA पेज को यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए. मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर वी बिगिन एंड बिफोर वी डिसाइड एंड डिस्कस व्हाटएवर वी आर गोइंग टू डू इन आवर स्टडी अब्रॉड प्लान एंड हमारी स्ट्रैटेजी में. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड दैट योर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी वेरी वेरी क्रेडिबल एंड फॉर दैट रीजंस हम जो भी इंफॉर्मेशन हम चेक करेंगे, जो भी हम ट्यूशन फी चेक करेंगे, जो भी हम अपना डेडलाइंस चेक करेंगे, उसके लिए प्लीज बी वेरी वेरी श्योर दैट यू आर नॉट रेफरिंग टू एनी अदर वेबसाइट अपार्ट फ्रॉम द ऑफिशियल यूनिवर्सिटी वेबसाइट बिकॉज डेटा अपडेटेड नहीं होता है बहुत वेबसाइट्स पे एंड हम सिर्फ ऑफिशियल यूनिवर्सिटी वेबसाइट ही रेफर करेंगे एंड हम सारे स्टूडेंट्स को भी यही सजेस्ट करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल यूनिवर्सिटी वेबसाइट ही रेफर करें एज वी आर ऑन दिस पेज. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले डेडलाइंस जरूर चेक करना बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा ना हो अपनी लास्ट मिनट एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं एंड देयर आर सम इंपॉर्टेंट डिटेल्स दैट यू माइट हैव मिस्ड आउट. सो मैंने जैसे कि फुल टाइम MBA पेज ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, इसका लिंक मैंने यूट्यूब में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड किया है. ऑल वी नीड टू सर्च फॉर इज डेडलाइन, राइट? वंस quick and smart way of doing it is you just have to search for Control F and you can search deadline. So as you can see on this page, deadlines are mentioned here. So 18th October 23 is the round 1 deadline जो कि already over हो चुकी है. हमारे बहुत सारे students ने already इसमें apply किया and काफी सारे students को हमारे interview invite already आ चुका है. And it is always recommended that you apply in round 1 deadline so that you have higher scholarship chances and at the same time you have higher acceptance rates as well. Apart from that, we have round 2 की priority deadline which is on 18th of December as we can see, and this is the priority deadline as mentioned for round 2 and then there is a round 2 deadline on 11th of Jan 24 and this is the last deadline which is technically not always present for international students. International students are highly recommended to apply in the first round and maximum by round 2 priority deadline. So now to begin with, let's click on begin the application process and you can see it will take you to account creation page, right? So यहाँ पे आपको अपने credentials create करने हैं. इस पेज पे as you can see create an account का बटन है, इस पे क्लिक करके आप अपने क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर सकते हैं. फॉर पर्पस ऑफ दिस वीडियो मैंने क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी क्रिएट कर लिए हैं. ऑब्वियसली बहुत बेसिक सा प्रोसेस होता है. एक ईमेल आता है आपके पास जिस पे आपको एक लिंक को क्लिक करना होता है, अपना अकाउंट एक्टिवेट करना होता है एंड देन यू कैन लॉग इन बैक हियर. सो इस पे क्लिक करते हैं एंड एज यू कैन सी आई हैव क्लिक्ड ऑन द साइन इन. इट विल टेक मी टू द होम पेज एंड इट विल आस्क मी टू सेलेक्ट द कोर्स बिकॉज किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना कोर्स सेलेक्ट करें. सो हम एक फुल टाइम MBA प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने वाले हैं. सो लेट्स सर्च फॉर अ फुल टाइम
टाइम MBA प्रोग्राम। ऑलराइट, सो यहाँ पे बॉस्टन यूनिवर्सिटी क्वेस्ट्रॉम स्कूल ऑफ बिजनेस, ये इनका स्कूल है जिसके थ्रू ये कोर्स जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, क्या कंप्लीट किया जाता है। एंड एज यू कैन सी वी कैन फाइंड MBA फुल टाइम फॉल एंट्री, राइट। सो यू नीड टू कंफर्म अ कपल ऑफ थिंग्स। एज यू कैन सी द डिलीवरी इज ऑन कैंपस, विच मीन्स आप ऑफलाइन जाके उनके कैंपस में पढ़ाई करने वाले हैं। फॉर्मेट इज फुल टाइम, ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव या पार्ट टाइम प्रोग्राम है, इसकी फुल टाइम क्लासेस होंगी। द डिग्री जो आपको मिलेगी इस कोर्स को करने के बाद एक MBA की डिग्री होगी, राइट। सेमेस्टर जो है इट इज सेमेस्टर मतलब कौन से सेमेस्टर में आपका ये स्टार्ट होगा प्रोग्राम। सो फॉल 24 ईयर इज ऑल्सो मेंशन्ड, सो September 24, राइट, इज व्हेन योर प्रोग्राम विल स्टार्ट। यू हैव अदर ऑप्शंस एज वेल, दिस इज द मोस्ट सिलेक्टेड ऑप्शन, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। बट अगर आप देखें तो बाकी सारे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देयर आर वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स जो कि आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हेल्थ सेक्टर MBA है, देन हेल्थ सेक्टर MBA प्लस MS in डिजिटल टेक्नोलॉजी करके कोर्स है विच इज देयर। बट फॉर दिस वीडियो वी विल कीप इट वेरी सिंपल, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं, विच इज योर MBA full time entry, and I'm clicking on this plus button here, right, and now this course is selected and I will click on continue. So now this course is selected, I need to review my program selections. There's a total application fee of $125. Now this is the application fee जो आपको सबमिट करनी पड़ती है to the university। इसकी मैंने बात प्रीवियस वीडियोस, कॉस्ट वाली वीडियोस जो है हमारी US UK वाली, उसमें भी करी है, तो वहां पे भी देख सकते हैं, राइट। सो $125 द एप्लीकेशन फी जो आप पे करेंगे अपनी यूनिवर्सिटी को फॉर प्रोसेसिंग दिस एप्लीकेशन, राइट। चलिए तो कंटिन्यू टू माय एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो एज यू कैन सी देयर आर 4 सेक्शंस ऑफ द पोर्टल यहाँ पे, राइट। वन इज योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, देन इज योर एकेडमिक हिस्ट्री, देन इज योर सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड देन इज योर प्रोग्राम मटेरियल्स, राइट। सो हम एक एक सेक्शन को क्विकली कवर करेंगे एंड आगे चलेंगे। नाउ बिफोर वी डू दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग एक चीज समझ लें, मैं जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें भरूंगा, डेफिनेटली मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स तो नहीं भरूंगा ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस, मैं डमी डिटेल्स फिल करूंगा इन चीजों की, राइट। सो आप बट मैं एक एक फील्ड का एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको ये एप्लीकेशन फिल करनी होती है, राइट। सो आगे चलते हैं। सो मेरी डिटेल्स को आप कॉपी ना करें, वो डमी डिटेल्स है, मैं रैंडमली कुछ भी उसमें फिल करूंगा ताकि मैं वीडियो क्विकली एंड तक कवर कर पाऊं, सारे फील्ड्स कवर कर पाऊं। तो आपको अपनी डिटेल्स भरनी है बट मैं एक्सप्लेनेशन पूरा दूंगा एक एक फील्ड का, राइट। तो आइए अब एक एक करके इन डिटेल्स को कवर करते हैं और अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर सेक्शंस दिखेंगे जिसके अंदर आपसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। सो लेट्स क्लिक ऑन द फर्स्ट वन विच इज योर बायोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। सो सबसे पहले तो जैसे कि आपने देखा मैंने अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे अपना नाम यहाँ पे फिल कर दिया था ऑलरेडी, तो मेरा नाम माय नेम इज पृथ्वी, इट इज ऑलरेडी बीइंग फिल्ड हियर, राइट। देन इट इज आस्किंग मी फॉर द डिस्प्ले नेम, व्हाट इज द फर्स्ट नेम दैट दे शुड यूज इन ऑल देयर कम्युनिकेशंस, आई विल से ऑब्वियसली पृथ्वी। डू यू हैव एनी मटेरियल्स अंडर अ फॉर्मल लीगल नेम। नाउ दिस सेक्शन इज फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके पासपोर्ट में और अपने मार्कशीट्स में कई बार नाम जो है वो अलग अलग होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि हमारे पेरेंट्स ने हाई स्कूल में कुछ नाम लिखा दिया था, फिर यूनिवर्सिटी में कुछ हो गया, पासपोर्ट में कुछ हो गया। इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं एंड वो आपकी सारी डिटेल्स ले लेंगे कि आपका पहले नाम क्या था, पहला फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम क्या था, आपका निकनेम क्या था। मेरे साथ ऐसा कोई केस नहीं था तो आई एम पुटिंग नो हियर। यू विल सिलेक्ट योर लीगल सेक्स, मेल, फीमेल, राइट, और एनी अदर सेक्स। सो आई विल सिलेक्ट मेल, योर जेंडर आइडेंटिटी, राइट, ट्रांसजेंडर, देन प्रोनाउंस जो आप अपने लिए यूज करते हैं। डू यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ LGBTQIA+ community? For me personally, no, but if somebody is applying in that category they can select yes and obviously they will ask for some more details. Now ये जो इन्फॉर्मेशन होती है आपकी बायोग्राफिक, आपकी रेशियल इन्फॉर्मेशन, आपकी एथनिसिटी से रिलेटेड, ये आपके एडमिशन डिसीजन पे इम्पैक्ट नहीं करती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मुझे सेलेक्ट करना चाहिए, मुझे नहीं सेलेक्ट करना चाहिए। ऐसा कोई भी इसमें डरने की या कुछ छुपाने की बात नहीं है। आपको अपने बारे में एडमिशंस कमेटी के सामने सारी चीजें सच्चाई से रखनी है, ऑनेस्टली रखनी है, राइट, एंड जो भी है छुपाना नहीं है कुछ। सो आगे चलते हैं। इफ यू आर अ फर्स्ट जनरेशन कॉलेज स्टूडेंट, आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियंस में से किसी ने बैचलर्स लेवल, ग्रेजुएट, मास्टर्स लेवल डिग्री कंप्लीट करी है तो अकॉर्डिंगली आप उनकी चीजें यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ इट इज योर बर्थ इन्फॉर्मेशन, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। लेट्स सपोज आई एम पुटिंग 1 जनवरी एंड फॉर्मेट के लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी पेक्यूलियर। आपको हर जगह डेट का फॉर्मेट मिलता है एप्लीकेशंस जब भी आप करते हैं। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल आई एम जस्ट गोइंग टू बैकस्पेस एंड डिलीट इट, आई विल सिलेक्ट इट फ्रॉम द कैलेंडर। ऑलवेज डू इट like that if you are not sure about the date format,
right? So let's suppose I want to put I was born in, and obviously I'm putting some random and dummy details. Let's suppose 1st Jan 1992, confirm date of birth. So date of birth complete करने के बाद we will come to country of birth. I will select India. Let's suppose New Delhi. Province is Delhi. Obviously I'm selecting dummy details. आपको यहाँ पे अपनी personal details डालनी है. Then country, county of birth. Counties generally are not applicable to international countries. So India के लिए applicable नहीं है. You can select any and you can save and continue. It's as simple, right? Continue to next section. यहाँ पे आपको अपना current address fill करना है and यहाँ पे students बहुत ज़्यादा confused हो जाते हैं कि वो कौन सा address जो है अपना fill करें। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि there are two kinds of addresses. One is your mailing address जहाँ पे आप currently रहते हैं। For example मेरा home town कहीं भी हो सकता है, मैं बैंगलोर में, दिल्ली में, नोएडा में जॉब कर रहा हूँ, right? And currently मैं PG में या rented apartment में रह रहा हूँ। So that is my mailing address. Permanent address आपका जो होता है, जो आपके passport पे mention होता है, वो आपका permanent address होता है और आप परमानेंट एड्रेस के अंदर फिल कर सकते हैं। सो ये दो तरीके की चीजें हैं, जो दो तरीके के एड्रेस हैं जो होते हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दोनों ही तरीके के एड्रेसेस को आप बहुत ध्यान से भरें, क्योंकि जब आपका ऑफर लेटर रिलीज होता है उसके बाद आपकी I-20 की डिटेल्स आती हैं आपके पास, राइट? I-20 इशू होता है एंड उसमें ये सारी चीजें मेंशन होती हैं, दे नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर एंड राइट। सो अभी से यू हैव टू बी श्योर कि पूरे वीजा में भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो अभी से आपको अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। नाउ आगे चलते हैं, तो आपको एड्रेस यहाँ पे कंप्लीट करना है अपना, आप यहाँ पे अपना मेलिंग एड्रेस डाल सकते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस अलग अलग है तो आपको ऑप्शन मिलता है परमानेंट एड्रेस को अलग से डालने का, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वो आप डाल सकते हैं। देन योर बेसिक डिटेल्स लाइक योर फोन नंबर, योर ईमेल, दिस इज समथिंग जो मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे भरा था, तो इसलिए ये प्री फिल्ड आ रही है, चीजें मुझे नहीं भरनी है। देन यू हैव टू ऐड योर लिंक्डइन प्रोफाइल डिटेल्स एंड देन यू हैव टू सेव ऑन कंटिन्यू। मैं डायरेक्टली ये डिटेल्स नहीं भर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको वॉक थ्रू करा रहा हूँ इस एप्लीकेशन का, तो इसलिए मेरे को सेव करने की जरूरत नहीं है, ये एक डमी अकाउंट क्रेडेंशियल्स है। देन इट्स द सिटीजनशिप इन्फॉर्मेशन। नाउ सिटीजनशिप में यूएस सिटीजनशिप स्टेटस आपका, अगर आप एज एन इंडियन स्टूडेंट हैं, जो कि 99% हमारे व्यूअर्स हैं, वो नन सेलेक्ट करेंगे एंड कंट्री ऑफ सिटीजनशिप में आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। अगर डुअल सिटीजनशिप है आपके पास, आप दो कंट्रीज की सिटीजनशिप होल्ड करते हैं, तो आप वहां पे डाल सकते हैं, बट जनरली 99% ऑफ द केसेस में आपका ऐसा केस नहीं होगा। जनरली स्टूडेंट्स एक ही सिटीजनशिप, एक ही कंट्री की सिटीजनशिप होल्ड करते हैं एंड वो इंडिया की ही होती है। देन लीगल स्टेट ऑफ रेसिडेंस आपके लिए रहेगा इंटरनेशनल, दिस इज फॉर पीपल हु आर करेंटली देयर इन द यूएस। हम फ्रॉम इंडिया एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें इंटरनेशनल इसको सेलेक्ट करना है। देन लीगल काउंटी ऑफ रेसिडेंस, अगेन काउंटी सिस्टम चलता नहीं है जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सो वी विल सेलेक्ट एनए। सो डू यू हैव अ यूएस वीजा? अभी अगर आपके पास यूएस वीजा है तो आप यस करके उसकी डिटेल फिल कर सकते हैं किस तरीके का वीजा है। अगर आपके पास ट्रैवल वीजा है, B1, B2, H1, H2, जो भी तरीके का आपका वीजा है, राइट, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जनरली मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के पास कोई वीजा नहीं होता है तो वो उसको नो ही फिल करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं फ्रेंड्स, विच इज योर रेस एंड एथनिसिटी। यहाँ पे आपको अपनी एथनिसिटी के बारे में सिलेक्शन करना पड़ता है। इफ यू कंसीडर योरसेल्फ टू बी अ हिस्पैनिक और अ लैटिनो, जनरली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए नो रहेगा। वी विल सिलेक्ट एशियन एंड विद इन एशियन वी विल सिलेक्ट एशियन इंडियन। सो दिस इज आवर एथनिसिटी जो उन्होंने अपने सिलेक्शन दिए हैं उसमें से विच इज द नियरेस्ट। आप अपने हिसाब से कुछ और पर्सनली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप डिक्लाइन टू स्टेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं इफ यू डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज दैट। एंड अगेन इस तरह की इंफॉर्मेशन से आपके एडमिशन डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो आगे चलते हैं, द नेक्स्ट सेक्शन जो हमारे एप्लीकेशन में ओपन अप होगा, विच इज द अदर इंफॉर्मेशन। तो व्हाट इज योर फर्स्ट लैंग्वेज? क्योंकि हम इंडिया के सिटीजन्स हैं, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज इज गोइंग टू बी हिंदी, राइट? मिलिट्री स्टेटस, बट दिस इज नॉट इंडियन मिलिट्री स्टेटस, प्लीज बी वेरी माइंडफुल ऑफ दिस। दिस इज द यूएस मिलिट्री स्टेटस। अगर आपने यूएस में उनकी मिलिट्री में उनके साथ आपने काम किया तो उसका स्टेटस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए नॉट अ मेंबर ऑफ मिलिट्री ही रहेगा। देन अगर आप यूएस सिटीजन हैं तो आप सोशल सिक्योरिटी नंबर, अपना जो उनका SSN नंबर होता है वो आप यहाँ पे डाल देते हैं। देन आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। सो इस पैराग्राफ में फ्रेंड्स जैसा आप देख रहे हैं बहुत ध्यान से लिखा हुआ है कि आप अपना कोर्स सिलेक्शन को एक बार दोबारा रीचेक कर लेंगे। जो भी चीजें हम सेव कर रहे हैं ये तभी सेव हो रही है क्योंकि सबसे पहले हमने MBA कोर्स को सिलेक्ट किया था अपना डैशबोर्ड पे जब हमने अकाउंट क्रिएट किया था। अगर आप उसको स्विच करेंगे, डिलीट करेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी और आपको दोबारा से इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। बट ये उसी केस में है जब आप कोर्स चेंज करते हैं। अगर आपकी कोर्स आप चेंज नहीं करें, नॉर्मली आप सोच रहे हैं कि इस एप्लीकेशन को मैं आधा अभी भर दिया है, आधा मैं थोड़ी टाइम बाद भरूंगा, तो आप सेव करके ड्राफ्ट में रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। सो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। एडिशनल क्वेश्चंस हैं यहाँ पे कुछ, जैसा आप देख सकते हैं, आप इस पे सिलेक्ट भी कर सकते हैं डिपेंडिंग आप कैसे प्रिवेसी चाहते हैं। इफ यू डोंट वांट टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन, अगेन मेजॉरिटी ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन जो है ये आपके सर्वेज के लिए ही कलेक्ट की जाती है, इतना जरूरी नहीं है इस इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करना, बट फिर भी आप भरना चाहें तो आप भर सकते हैं, जैसे कि अदर इंस्टीट्यूशन जहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं, राइट। अगर आपका कोई फैमिली फ्रेंड या मेंबर या आपका कोई क्लोज कॉन्टैक्ट अगर अप्लाई कर रहा है टू दिस प्रोग्राम, यू कैन इंक्लूड योर नेम एंड रिलेशनशिप विद देम। आपकी फैमिली में कोई बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पहले एसोसिएटेड रहा है, किसी भी तरीके में उन्होंने पढ़ाई करी है या उन्होंने पढ़ाया है या वो एडमिन ऑफिस में थे, किसी भी तरीके से एम्प्लॉय थे, तो आप उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको उनकी कंपनीज या गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिल रही होती है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। दैट विल यू बी रिसीविंग अ फुल और पार्शियल ट्यूशन रीइंबर्समेंट, यानी आपको कहीं से रीइंबर्स किया जा रहा है, या तो आपकी सरकार, आपकी गवर्नमेंट या आपकी कंपनी आपको कर रही है। अगर आपका केस है तो आप यहाँ पे येस करेंगे और आप अपनी परसेंटेज कितना ट्यूशन फी का आप एज स्कॉलरशिप रिसीव कर रहे हैं, ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, वो आपको यहाँ पे भरना है। अगर आप बॉस्टन यूनिवर्सिटी में ही मेरिट बेस्ड और भी जो स्कॉलरशिप्स हैं उसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसा कि आपने देखा कि हमने हितांशु के केस में भी $45,000 वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप हमें मिली थी, तो उसकी डिटेल्स आगे हम कवर करेंगे। बट ये जो है ये है आपको ऑलरेडी जो मिल चुकी है रीइंबर्समेंट कहीं से, जो हमारी मेजॉरिटी केसेस में ये नो ही रहता है, तो इसको हम नो सेलेक्ट करेंगे। देन अगेन सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन, आपने क्वेस्टॉम स्कूल ऑफ बिजनेस के बारे में कैसा सुना है, तो आप पढ़ सकते हैं, कहां से आपने देखा, क्या देखा, राइट। अदर पे अगर हम जाएं तो फॉर एग्जांपल मैंने गूगल सर्च पे देखा, तो इसलिए मैंने पता चला, मैं इंटरेस्टेड हुआ इस चीज में। देन हैव यू एवर बीन डिसिप्लिन्ड बाय एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी फॉर रीजंस पर्टेनिंग टू एकेडमिक इंटेग्रिटी। सो कभी भी आप एक्सपेल हुए हैं, सस्पेंड हुए हैं, किसी भी तरह का आपने वायलेशन किया है, तो उस चीज को आप यहाँ पे बता सकते हैं। जनरली ये स्टूडेंट्स के लिए नो ही रहता है, बट अगर आप ऐसे शैतान बच्चे रहे हैं कि आपने ये किया है, तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी एंड बताना पड़ेगा। एंड देन इट इज अपॉन द एडमिशंस कमिटी कि वो कितने सीरियस उन चीजों को सीरियसली लेते हैं एंड आपसे फर्दर इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, जिसके बेसिस पे आपका डिसीजन आएगा। देन आगे चलते हैं। सो यहाँ पे आप अपना वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड चीजें जो है इसमें ऐड करेंगे, जैसे कि ये पूछ रहा है हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस, राइट। तो इसमें आपको अब देखिए यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पूछते हैं अब इसमें हमें इंटर्नशिप्स डालें नहीं डालें, हमारी तो पेड इंटर्नशिप थी, फुल टाइम इंटर्नशिप थी, वो डालें या नहीं डालें। सी द की टू ऐड एनी इंफॉर्मेशन इन योर एप्लीकेशन इज कि आप वहाँ पे जो डिटेल्स मेंशन है उसको बहुत ध्यान से पढ़ें। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं उसमें क्लियरली लिखा हुआ है हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस, दिस डज नॉट इंक्लूड फुल टाइम इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस, विच मीन्स कि आप अगर एमबीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप एक मास्टर्स लेवल कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड आपने ग्रेजुएशन यहाँ अपनी होम कंट्री फॉर एग्जांपल इंडिया से किया है, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपने फुल टाइम कितना एक्सपीरियंस है आपका टिल डेट यू आर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन, वो चीज आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। यहाँ पे कोई भी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड नहीं करना है until it is explicitly written on the website. So for majority of the students आप एक full time MBA के साथ अप्लाई कर रहे हैं, so it is generally recommended कि आप with experience ही अप्लाई करें। So obviously I will select yes. Number of years of full time work experience, again you have to select, for example if now it is very important कि आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि years में बताना है या months में बताना है, right? कई बार students इसमें भी confuse हो जाते हैं। तो for example मेरा total work experience बनता है around 50 months का, राइट। सो 50 मंथ्स को बट हमें यहाँ पे ईयर्स में बताना है, सो आई विल राइट 4.2, राइट, आई विल नॉट राइट 50, राइट, बिकॉज मंथ्स में नहीं बताना। अगर कोई स्कूल मेरे से पूछ रहा है मंथ्स में आप लिखो अपना वर्क एक्सपीरियंस, तो मैं मंथ्स में बताऊंगा, राइट। इफ यू हैव एनी गैप्स इन योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री और नो लॉन्गर करंटली वर्किंग, प्लीज प्रोवाइड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बिलो। नाउ अगर आप ऑब्वियसली अपना आपको एक अपडेटेड सीवी इस एप्लीकेशन में अपलोड करना होगा आगे, तो जहां पे भी आपका सीवी जाएगा वहां पे जो एडमिशन कमिटी है वो आपका जो गैप है आपकी टाइमलाइन में वो बहुत इजीली पकड़ लेते हैं एंड आपसे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। एंड यहाँ पे आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है एडमिशन कमेटी को कि क्यों आपकी जो टाइमलाइन है उसमें गैप है, आपके एजुकेशन जो है उसमें एक गैप है और आप उस समय क्या कर रहे थे, उन्हें एक जस्टिफिकेशन चाहिए, राइट। एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, आपका कोई जेन्युइन रीजन था, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो आईवी लीग्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड दे हैव टेकन अ सबैटिकल और दे हैव टेकन एन ऑफ फ्रॉम देयर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एंड दे आर प्रिपेयरिंग देयर जीआरई एग्जाम्स, राइट। सो आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, आपको सच रहना है, सच बोलना है एंड द एडमिशन कमिटी will always understand. So आगे चलते हैं। Then are you currently full time employed? अगर yes, so you will
fill in all these details which is related to your work employment experience, right? सबसे पहले आपको अपनी इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है, एक्सपीरियंस टाइप कैसा है आपका, फुल टाइम। अब यहाँ पे देखिए आपको इंटर्नशिप और पार्ट टाइम चीजों को फिल करने का ऑप्शन मिल गया, तो यहाँ पे आप अपना इंटर्नशिप अगर कभी कर रहे हैं यहाँ पे तो आप फिल कर सकते हैं। देन बेसिक सी चीजें हैं आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम, कंट्री, करंट एक्सपीरियंस, योर जॉब टाइटल, आप और भी एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम कितने वर्क एक्सपीरियंस ऐड करें। आई वुड से मैक्सिमम एज यू कैन, जो आपके सीवी में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। सो यहाँ पे जो भी आप डेट्स, इंफॉर्मेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भर रहे हैं, दिस शुड बी एब्सोल्युटली इन सिंक विद व्हाट योर सीवी इज टेलिंग द एडमिशंस कमिटी, एंड वही डिटेल आपको सारी यहाँ पे फिल करनी है, हाईलाइट करनी है, सो दैट देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं कि मैं अक्टूबर 2023 से नवंबर 2023 में सीवी में मैं बोलूं मैं ऑर्गेनाइजेशन ए में काम कर रहा था और मैं यहाँ फिल कर रहा हूँ कि मैं ऑर्गेनाइजेशन बी में काम कर रहा। सो दैट डिस्क्रिपेंसी इज गोइंग टू क्रिएट सम ट्रबल्स फॉर यू, राइट? सो डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए, एक ही सोर्स ऑफ ट्रुथ होना चाहिए, राइट? सो ये ऐसा हमने ये वाला सेक्शन अपना कंप्लीट कर लिया, इसको आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये हमारा फर्स्ट सेक्शन के अंदर था, लास्ट सेक्शन विच वाज द पर्सनल इंफॉर्मेशन सेक्शन। इसको आप क्योंकि कंप्लीट फिल करेंगे तो ये आपको ऐसे ग्रीन बार जो है ये पूरा दिखाएगा आपको, राइट? आगे चलते हैं अब। तो अब हमने अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन सेक्शन जो है वो कवर कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, सेकंड सेक्शन, जैसा कि आप देख सकते हैं एकेडमिक हिस्ट्री का। आई विल क्विकली क्लिक ऑन दिस एंड इसके फर्दर अंडर आप देखेंगे तो 3 सेक्शन आपको दिखाई देंगे। पहला सेक्शन है आपका कॉलेजेस अटेंडेड का सब सेक्शंस, एंड इस पे मैं अब क्लिक करूंगा आगे तो कॉलेजेस अटेंडेड में यू हैव टू ऐड योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी जहां से आपने अपना ग्रेजुएशन व्हिच इज अ बैचलर्स आपने कंप्लीट किया है। यहाँ पे आप एक चीज और देख सकते हैं, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको लिखी हुई है, व्हिच इज यू डू नॉट रिक्वायर अ वेस इवैल्यूएशन, राइट, फॉर योर एप्लीकेशन। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आपका वेस का खर्चा जो है वो यहाँ पे इस एप्लीकेशन में सेव हो जाता है। सो क्लिकिंग ऑन ऐड अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी, यू नीड टू ऐड योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी व्हिच यू अटेंडेड। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको एक चीज का भी ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन विच इज योर यूनिवर्सिटी उसका नाम लिखें, आप अपने कॉलेज का नाम ना लिखें। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आ रहा है, जीसस एंड मेरी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, राइट? सो अगर आपकी जो डिग्री आप देखेंगे वो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की मिलती है, राइट? उस पर कहीं भी कॉलेज मेंशन नहीं होता अच्छे से। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आप अपनी यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन यहाँ पे भरें। जब डिग्री आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे तो वहां पे जो नाम आएगा लेटर हेड पे ऊपर, राइट, विच इज ऑफ द यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो डिग्री ग्रांट करती है, तो इसलिए आपको अपना यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, कॉलेज का नाम नहीं लिखना है। सो आई विल सिलेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सो डिड यू ऑब्टेन, आर यू प्लानिंग टू ऑब्टेन अ डिग्री फ्रॉम दिस कॉलेज? यस। देन अगर आपका डिग्री प्रोग्रेस में है, यानी आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं अभी से, तो आप वहां पे इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को ये डिग्री अवार्ड हो चुकी है क्योंकि हम एमबीए एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं एंड वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, राइट? सो व्हाट टाइप ऑफ डिग्री यू अर्न्ड, यू कैन सेलेक्ट, राइट? अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है इसमें से, सो आप अदर बैचलर या अदर मास्टर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एग्जैक्ट डिग्री अगर नहीं है, राइट? सो आई सिलेक्ट लेट्स सपोज बैचलर्स ऑफ आर्ट्स। इन विच मंथ डिड यू अर्न दैट डिग्री, आपको डिग्री किस मंथ में मिली, आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट है आपके पास या डिग्री सर्टिफिकेट है तो उसमें नीचे डेट होती है कि किस दिन ये अवार्ड हुआ, वो डेट आपको यहाँ पे फिल करनी है। सो लेट्स सपोज आई से सितंबर and year, let's suppose I select 2015. then what was your major, अगर आपका कोई मेजर था आपकी डिग्री में, राइट, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं या आप नन लिख सकते हैं, राइट? अगर ऑप्शन आपको नहीं मिलता है तो अदर नॉट लिस्टेड का ऑप्शन भी यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है ना। माइनर था तो अगेन सिमिलरली आप माइनर भी कर सकते हैं, एंड डबल मेजर आपकी डिग्री थी तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव मोर डिग्रीज, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने मास्टर्स की होती है एंड डबल मास्टर्स के लिए अब्रॉड जा रहे होते हैं, इन दैट केस आप वो डिग्री भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड व्हाट टाइप ऑफ टर्म सिस्टम, यानी ट्राई सेमेस्टर, सेमेस्टर या क्वार्टरली सिस्टम था जो आपके कॉलेज में फॉलो होता था, वो आपको फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल सेमेस्टर, एंड आर यू स्टिल अटेंडिंग दिस कॉलेज, फॉर एग्जाम्पल नो, तो आपको अपना फर्स्ट सेमेस्टर एंड लास्ट सेमेस्टर का जो मंथ है एंड ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, विच इज विंटर, स्प्रिंग, समर 1 2, समर एंड फॉल। जनरली मैंने देखा है इंडिया में जब हम अप्लाई करते हैं इंडिया से, तो हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूजली जुलाई टू सितंबर के बीच में जो है वो स्टार्ट होती हैं। सो यू कैन चूज एनीवेयर बिटवीन समर एंड आई वुड से समर 2 फॉर दैट रीजन। अगर सितंबर तक जाता है सो यू कैन सेलेक्ट फॉल एज वेल। कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ गलत और सही का रूल नहीं है, राइट, बट यू हैव टू फिल दिस इन्फॉर्मेशन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेक्शन इज योर जीपीए एंट्रीज। अच्छा, तो अब इस सेक्शन पे जाने के लिए इट इज सेइंग कि हमने क्योंकि इन्फॉर्मेशन वहाँ सेव नहीं करी है तो हम यहाँ पे नहीं आ सकते, तो इसमें पहले चलते हैं और यहाँ पे क्विकली से ये मैं यूनिवर्सिटी
ऐड कर देता हूँ एंड डिटेल्स ऐड कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट सेक्शन जो है वो आपको दिख पाए। एक और ऑप्शन है यहाँ पे कांट फाइंड योर स्कूल का, अगर आपको नहीं मिलता तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन सिलेक्ट एन अनलिस्टेड फॉरेन स्पीकिंग कैनेडियन और अदर फॉरेन इंस्टीट्यूशन। स्कूल्स कंट्री आई वुड से इंडिया, यस। डिग्री अवॉर्डेड, डिग्री हो गई मेरी बैचलर ऑफ आर्ट्स फॉर एग्जाम्पल, सितंबर एंड ईयर बिकम्स 2013, मेजर नन, राइट, semester system still attending, no. Then my first was in September 2010, let's suppose, so it will be fall, and let's suppose if my degree is of 3 years, so I will select 2013 and I will again select fall and I will save this information. Now let's come to the GPA entry section, जो next section है हमारा, right? So we need to add the GPAs, but यहाँ पे आप देख रहे हो क्योंकि हम फॉरेन कॉलेज से हमने अपना डिग्री कंप्लीट किया है, so we do not need to add this. Standardized टेस्ट पे चलते हैं। So यहाँ पे this is the section where you have to report your GRE, GMAT, TOEFL, IELTS, whatever score you might have, right? Again बहुत ही बेसिक सा सेक्शन है। I will click on IELTS. Have you taken the test? Yes. आपने कब टेस्ट लिया, अपनी टेस्ट डेट आपको लिखनी है, कैंडिडेट नंबर, TRF नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको अपने TRF पे मिल जाएंगी, तो वहां से आपको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डालनी है। देन रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग के इंडिविजुअल स्कोर्स एंड ओवरऑल बैंड स्कोर, एंड यू कैन सेव दिस टेस्ट। दिस इज हाउ यू विल डू दिस, एंड नाउ द सेकंड सेक्शन विल ऑल्सो बी कंप्लीट। तो अगर हम होम पेज पे चलें तो अब हमने 2 सेक्शन जो हैं वो कवर कर लिए हैं। अब हम थर्ड सेक्शन पे चलते हैं, विच इज योर सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन। इस सेक्शन में आप देखेंगे तो 2 तरीके के सब सेक्शंस हैं। फर्स्ट इज योर डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आपको अपना CV एंड रिज्यूमे ऐड करना है, राइट, एंड एनी अदर मिसलेनियस डॉक्यूमेंट दैट यू वांट टू ऐड, यू वांट टू शेयर एंड यू वांट एडमिशंस कमिटी टू रिव्यू, राइट। इन केस कुछ भी आपका मेडिकल हिस्ट्री है या कुछ भी आप अपना डॉक्यूमेंट जो रखना चाहते हैं एडमिशन कमिटी के सामने, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड ऑन द नेक्स्ट सेक्शन वी हैव रिलीज स्टेटमेंट। नाउ दीज आर मोर और लेस लाइक आई वुड से एग्रीमेंट्स एंड टर्म्स व्हिच यू हैव टू अडहेयर टू। आप इनको वैसे भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप सेलेक्ट नहीं करोगे, सेव नहीं करोगे, आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते। जस्ट गो थ्रू इट वंस एंड सी क्या है, राइट। नाउ ये हमारा था सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन सेक्शन, एंड नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस एप्लीकेशन व्हिच इज योर प्रोग्राम मटेरियल। नाउ इसके अंदर एक ही सेक्शन है जिस पे हम क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे सेक्शंस हमारे खुल गए हैं फॉर योर क्वेश्चंस, डॉक्यूमेंट्स, रिकमेंडेशंस एंड कीरा असेसमेंट। एक एक करके चलते हैं। यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन का कोर्स विच इज योर MBA डिग्री, प्रोग्राम, फॉल, ईयर 2024, ये सारी चीजें आप वेरीफाई कर सकते हैं। गोइंग टू द नेक्स्ट सब सेक्शन विच इज योर क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको आपके एसेज और वीडियो एसेज जो हैं वो आपको पुट करने हैं, राइट। इनकी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट पॉज करके लेना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, सो दैट बाद में आपको अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपको पहले से पता है कि इस एप्लीकेशन में क्या चीजें जा रही हैं, राइट। एसेज हैं, वीडियो एसे है, रिटन एसे है, राइट। जस्ट बी वेरी श्योर कि जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उसमें जो वर्ड लिमिट अडहेयर करी गई है उसको आप जरूर फॉलो करें। कई जगहों पे बहुत सारी एप्लीकेशंस में इवन आपको फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली भी मेंशन होता है, तो वो आप जरूर चेक करें। मेक श्योर यू आर नॉट यूजिंग एनी टूल लाइक ChatGPT और समथिंग टू क्रिएट योर एसेज। यूनिवर्सिटीज के पास बहुत अच्छे हाईटेक टूल्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी प्लेगराइज्ड कंटेंट एंड AI जनरेटेड कंटेंट पकड़ने के लिए। आप अपना एप्लीकेशन को हैम्पर नहीं करना चाहेंगे इतनी स्टूपिड सी मिस्टेक के लिए। सो आई एम अगेन रीइटरेटिंग, ये जो एसेज हैं, SOPs हैं, ये सारे के सारे जो हैं बहुत अच्छे से आपका मैनुअली क्यूरेट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके एप्लीकेशन प्रोसेस के। कोई भी AI जनरेटेड टूल से उसको जनरेट आप ना करें। नाउ इस ऐसे को सबमिट करने के आपके पास 2 ऑप्शन है, एक रिटर्न ऐसे एंड एक वीडियो ऐसे। आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस ऊपर मिल जाएंगे कि कैसे आपको ये रिकॉर्ड करना है आंसर अगर आप वीडियो ऐसे कर रहे हैं, या कैसे आप पेस्ट करना है अगर आप रिटर्न ऐसे दे रहे हैं, राइट। आई वुड जनरली प्रेफर आप रिटर्न ऐसे दें। क्यों? क्योंकि आपको क्यूरेट करने का, उसको रिवाइज करने का, उसको फाइनलाइज करने का बहुत अच्छे से टाइम मिल जाता है बिफोर यू आर सबमिटिंग। वीडियो एसेज में कई बार कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो नर्वस हो जाते हैं, उतने कॉन्फिडेंट नहीं रहते, उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी होती है, कई बार प्रैक्टिस करी होती है, बट फिर भी वो कई बार फंबल कर जाते हैं, राइट। सो आई वुड ऑलवेज से रिटन ऐसे इज समथिंग विच इज ऑलवेज रिकमेंडेड, बट आप वीडियो ऐसे भी कर सकते हैं इफ यू आर मोर कंफर्टेबल विद इट। देयर इज नो स्पेसिफिक प्रेफरेंस फॉर द यूनिवर्सिटी। देन वर्क एक्सपीरियंस क्वेश्चनर में इफ यू हैव एनी गैप्स इन योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, वो आपको मेंशन करना है यहाँ पे कि वो गैप। पोस्ट MBA गोल्स, नाउ यहाँ पे बहुत शॉर्ट आंसर्स कुछ चाहिए आपके,
राइट. व्हाट इज योर इमीडिएट पोस्ट MBA करियर गोल, प्लीज इंक्लूड डिजायर्ड इंडस्ट्री एंड रोल. तो आपका पोस्ट MBA यानी MBA करने के बाद आप क्या कोर्स करने वाले हैं, कहाँ अपनी नौकरी करने वाले हैं, किस इंडस्ट्री में, वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी है. किस रोल में आपको जाना है, आप जाना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी है. देन व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म करियर गोल एंड प्लीज इंक्लूड अगेन योर डिजायर्ड इंडस्ट्री एंड रोल. आपका लॉन्ग टर्म करियर गोल क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए. एंड जो भी आप इसमें आंसर लिखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो स्टोरी लाइन है वो कनेक्ट होनी चाहिए. सो योर लॉन्ग टर्म करियर गोल जो भी आप लिख रहे हैं, आपको यहाँ पे ये दिखाना है कि आपका लॉन्ग टर्म करियर गोल बॉस्टन यूनिवर्सिटी से MBA करके क्वेस्ट्रॉम स्कूल ऑफ बिजनेस से कैसे पूरा होगा, कैसे वो कनेक्ट हो रहा है. राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कर तो MBA रहा हूं बट मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि मुझे शेफ बनना है. आप बोलो कि मुझे होटल ओनर बनना है, मुझे बिजनेस ओनर बनना है, देन इट मेक सेंस. राइट, बट शेफ बनने के लिए आपको MBA करने की जरूरत नहीं है. सो दोनों चीजें कनेक्ट होनी चाहिए. दैट इज हाउ योर प्रोफाइल विल बी जज्ड. राइट, बिकॉज एडमिशंस कमिटी के सामने आप खुद तो बैठे नहीं हो. राइट, अगर आपका लाइव इंटरव्यू नहीं आया, वो आपका फाइनल स्टेज में आता है. राइट, उसके बाद तो आपका ऑफर आ जाता है. उससे पहले हाउ विल द एडमिशन कमिटी विल डिसाइड कि व्हाट काइंड ऑफ कैंडिडेट यू आर. इट इज थ्रू दीज आंसर्स दे विल जज यू. Right, so they have to be really high quality, good content and well connected to your overall profile that you are putting in front of the admissions committee. Then if you are applying to a dual degree program, you can select here. Right, इसके बाद आगे चलते हैं तो आप देखेंगे एक सेक्शन है मैनेजमेंट साइंस मेजर का, which means एक हेल्थ सेक्टर का स्पेसिफिक MBA है. राइट, जो यहाँ पे बॉस्टन यूनिवर्सिटी ऑफर करता है, द सोशल इम्पैक्ट MBA और MBA प्लस MS in डिजिटल टेक्नोलॉजी. इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर दैट यू कैन सेलेक्ट दैट. आई डोंट वांट टू डू दैट. मैं सिर्फ MBA की अभी एप्लीकेशन आपको वॉक थ्रू करा रहा हूँ. राइट, आई विल सेलेक्ट नो. देन अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ है, उनको इंटरव्यू इनवाइट, इवैल्यूएटिव इंटरव्यू इनवाइट जो है वो आया था, तो उन लोगों को वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है कि यस आपको हुआ था, कब इंटरव्यू हुआ था और किसने इंटरव्यू लिया था. मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने ये अप्लाई नहीं किया होगा पहले. राइट, तो मैं नो सेलेक्ट करूंगा एंड आई विल सेव दिस. नाउ गोइंग अप आई विल गो टू द एंड ऑब्वियसली मेक श्योर यू आर सेविंग दिस. क्लिक ऑन द सेव बटन, तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव हो जाएगी. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज योर डॉक्यूमेंट सेक्शन. डॉक्यूमेंट सेक्शन में यू कैन सी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज रिक्वायर्ड. Then your Kira video essay is also required. Then GMAT और GRE requirements are there unless waived. अगर आपको waiver मिला है बॉस्टन यूनिवर्सिटी से तो आपको नहीं देना पड़ेगा. हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको रिसेंटली बॉस्टन यूनिवर्सिटी से waiver मिला है एंड एप्लीकेशन फी waivers मिले हैं. In case you also want to apply to this university with fee waivers or GRE GMAT waivers, so you can click on the first link in the description which is there down in the video and you can fill your form and our team will get in touch with you and help you in getting the application submitted. Right now you have to write an essay. Again, it should not be more than 750 words and should explain to the committee why you would like to earn your degree from the Questrom School of Business specifically. Right, again as I mentioned, आपकी story line connect होनी चाहिए. It should also address why you have selected the program you are applying to, full time MBA, professional, health sector और dual degree, जो हमने selection अभी पिछले screen पे किया था, and how that program will help you achieve your post graduate goals. Right, अब देखो exactly वही चीज आगे जो मैंने पिछले screen पे आपको explain करी थी कि आपकी ये डिग्री completion से आपके long term करियर गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स कैसे कनेक्ट होंगे. राइट, आप कहीं से भी MBA कर सकते हो, बहुत सारे स्कूल्स हैं राइट यूएस में, बट बॉस्टन से ही क्यों, क्वेस्ट्रॉम से ही क्यों, फुल टाइम MBA ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं. राइट, ये सारी चीजों का आंसर आपकी स्टोरी में होना चाहिए एंड वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि वो आपको पुश कर रहे हैं, आपको एक तरह से रास्ता दिखा रहे हैं कि आपको ये MBA करना है इस यूनिवर्सिटी में. दैट्स हाउ द स्टोरी शुड बी कनेक्टेड. देन यू ऑल्सो हैव सम ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन वेयर इन यू कैन अपलोड एन ऑप्शनल एसे, एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगेन यू वांट टू ब्रिंग टू द एडमिशंस कमिटी के नोटिस में. Not more than 250 words should be uploaded here. Right, it should include topics like post college work experience, choice of recommenders, concerns about academic or test performance, anything you want to highlight with the team. Right, test score report, आपके जो IELTS TRF है, GMAT score card है, GRE score card है, वो आप यहाँ पे upload कर सकते हैं. And any other miscellaneous document again you want to share with the admissions committee. Moving on to the next section, we have recommendations. Again very important, आपके professional, आपके academic recommenders को एक mail जाता है जहाँ पे आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं, क्वालिटीज हैं, उन पे वो आपको जज करते हैं, आपको रिकमेंड करते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिकमेंडर्स से कि आप एडवांस में पहले से बात करके रखें, उनसे परमिशन ले लें आपकी, मैं आपका नाम डालूं, आपका इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालूं या नहीं डालूं, एल्स दे माइट नॉट रिस्पॉन्ड. और अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन बीच में अटक जाएगा, रिव्यू में नहीं जाएगा और डिसीजन नहीं आएगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रिकमेंडेशंस डालते टाइम उनसे पहले आप अपने रिकमेंडर से बात कर लें, कंफर्मेशन ले लें कि मैम या सर आपके पास एक ईमेल आएगा जिसपे आपको मेरा रिकमेंडेशन सबमिट करना पड़ेगा, तो प्लीज गिव मी अ गो हेड. राइट, देन यू कैन रिक्वेस्ट योर MBA रिकमेंडेशन बाय क्लिकिंग हियर. इस पे क्लिक करके आपका डिटेल्स खुल जाएंगे जो आपको अपने रिकमेंडर के बारे में डालने हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, उनका ड्यू डेट विच मींस किस डेट तक उनको ये कंप्लीट करना है, ये
ये ड्यू डेट उनको दिखेगी उनके ईमेल पे कि इस डेट से पहले उनको कंप्लीट करना है। कुछ पर्सनल मैसेज एंड नोट्स आप डालना चाहें कि हाय सर, हाय मैम, प्लीज कंप्लीट माय रिकमेंडेशन, राइट। तो उस तरह से आप कोई भी मैसेज यहाँ पे डाल सकते हैं जो उनको जाएगा। तो नीचे आते हैं, अब आता है वेवर ऑफ रिकमेंडेशन। आई वेव माई राइट ऑफ एक्सेस टू दिस रिकमेंडेशन। तो यूएस में क्या होता है, आप अपना आपका एक राइट टू एक्सेस है आपके रिकमेंडेशन पे, आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि आपके रिकमेंडर ने क्या रिकमेंडेशन सबमिट किया है आपके लिए, राइट। सो अगर आप उसे नहीं देखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू वेव योर राइट, तो आप येस सेलेक्ट करेंगे। अगर आप उसे देखना चाहते हैं कि मेरे रिकमेंडर ने क्या सबमिट किया है, तो आप उसे नो सेलेक्ट करेंगे ना, आपको दिखेगा। देन परमिशन टू कॉन्टैक्ट रिकमेंडर, you'll have to select, and then permission for school to contact the recommender, again you'll have to select। अभी ये बटन डिसेबल है क्योंकि मैंने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं भरी है। जब ये इन्फॉर्मेशन भरी जाएगी तो आपको इसको क्लिकेबल हो जाएगा ये अपने आप। वापस आते हैं अपने रिकमेंडेशन सेक्शन पे बाहर, तो देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है दे रिक्वायर एटलीस्ट 1 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो ये क्लियरली आपके एप्लीकेशन में लिखा होता है कि कितने रिकमेंडेशन उन्हें चाहिए। आगे चलते हैं, देन हमारा लास्ट पार्ट है कीरा असेसमेंट। सो कीरा असेसमेंट क्या होता है, मैं क्विकली एक बार बता देता हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियोज इस पे बनाए हुए हैं, बट जो स्टूडेंट्स ने हमें नहीं देखा है पुरानी वीडियोज को, तो कीरा असेसमेंट इज बेसिकली आपका एक इंटरव्यू होता है, बट इंटरव्यू से थोड़ा सा अलग है। मैं कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज आपका एक इंटरव्यू इनवाइट आया। टॉप स्कूल्स में जनरली बहुत कॉमन है, जब आपका फाइनल स्टेज में एप्लीकेशन पहुंच जाता है तो आपको एक इंटरव्यू इनवाइट मिलता है, राइट। आप इंटरव्यू में जाते हैं, वहां पे एडमिशंस कमेटी के सिंगल मेंबर, मोर देन 1 मेंबर भी हो सकते हैं, राइट। 2-3 लोग बैठे होते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप उसका आंसर देते हैं। ये होता है आपका लाइव इंटरव्यू। बट अगर मैं कीरा की बात करूं, सो कीरा के केस में क्या होता है, आप इंटरव्यू तो देते हैं बट सामने कोई लाइव पर्सन नहीं बैठा, राइट। स्क्रीन पे क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दिया जाता है जिसमें आप अपने आंसर्स प्रिपेयर कर लें, राइट। कुछ सेकंड्स का होता है वो, राइट। एंड देन आपको उसका आंसर देना होता है एंड वो कैमरा आपका रिकॉर्ड कर लेता है आपका आंसर। सो इट इज मोर ऑफ लाइक अ रिकॉर्डेड इंटरव्यू कि क्वेश्चन जो है वो सामने स्क्रीन पे आएंगे एंड आपको अपना आंसर जो है वो रिकॉर्ड करना है। सो दैट इज हाउ कीरा असेसमेंट इज डन। सो यू कैन डू योर कंप्लीट योर कीरा असेसमेंट बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन, एंड विद दिस योर एंटायर सेक्शन इज कंप्लीट। वंस यू हैव डन दैट, यू कैन गो टू माय एप्लीकेशन। सो ऑल द सेक्शंस ऑफ योर एप्लीकेशंस आर नाउ कंप्लीट। हमने सारी चीजों को एक एक करके कवर कर लिया। जब आप ये सारी डिटेल्स फिल कर देंगे, अपनी पर्सनल डिटेल्स के साथ वेरीफाई कर लेंगे, रीवेरीफाई कर लेंगे, देन यू कैन गो टू द सेक्शन सबमिट द एप्लीकेशन। यहाँ पे ये सबमिट का बटन जो है ये क्लिकेबल हो जाएगा एंड देन यू विल हैव टू पे योर एप्लीकेशन फी ऑफ $125, राइट। एंड दैट्स हाउ यू नीड टू सबमिट योर एप्लीकेशन, राइट। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो? आई होप यू हैव टेकन नोट्स फॉर ईच एंड एवरी स्टेप वी कवर्ड इन डिटेल। In a nutshell, it is very important for you to fill all the details very diligently and always cross-check the details filled before submitting the application. I'm sure now you have absolute clarity. अगर आप भी Boston University में MBA के लिए application submit कर रहे हैं for fall 2024 intake. Moreover, I want you to comment down below for which schools do you need such application explainer videos, and me and my team will make sure that we will keep on adding such informational videos for you regularly. अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है या आप चाहते हैं एस माई प्रेप हेल्प करे आपको आपकी स्टडी अब्रॉड प्रोसेस में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक ऐड किया है जिस पर क्लिक कर आप एक स्टडी अब्रॉड स्ट्रैटेजी सेशन रख सकते हैं, जहां पर आवर एक्सपर्ट्स विल गेट यू 3 थिंग्स। फर्स्ट, अ लिस्ट ऑफ टॉप 5 यूनिवर्सिटीज दैट यू शुड अप्लाई टू एज पर योर प्रोफाइल। सेकंड, कोर्सेज विद बेस्ट पॉसिबल ROI। थर्ड, सैलरीज एंड जॉब प्रोस्पेक्ट्स पोस्ट योर स्टडीज अब्रॉड। सो क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड शेड्यूल योर स्टडी अब्रॉड स्ट्रैटेजी सेशन विद अस। एंड वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जो अपना स्टडी अब्रॉड प्रोसेस करना चाहते हैं, एंड दे माइट एंड अप सेविंग thousands of rupees in their study abroad process. Stay tuned for more informative videos.